Santosh Kumar, District Government Manager, Jeevika Patna, all collected faculty members and their students. Today, we are going to organize a webinar on time management in NGP Patna Tera under the guidance and innovative ideas of respected principals. Dear participants, as we all know that time is precious for all of us, in which those who manage themselves very well with time can achieve their goals. But contrary to this, any those who do not manage their time ultimately they does not achieve their goal or not reach the target that they had set. What is the time management? Time managing, we all know what is time management, but I think time management is nothing but it is a self-management in which we organize ourselves with time for productive achievement. Productive achievement means we improve our personality to enrich this. Even during this COVID period, we have learned very much things and we will improve our technical efficiencies and we will utilize our time with knowledging things. So I welcome to all participants who joined this webinar. I hope and I'm also sure that it will be an enriching session for all of us. So again, to thanks a lot to our principal sir and colleagues for starting webinar. Now I would like to request our respected principal sir to deliver his keynote address to all. Good morning, everybody. I especially thanks Dr. Anupma ji to organize on such a wonderful topic, that is time management. First of all, I welcome my learned speaker, Dr. Santosh Kumar, who has given us his precious time. As all of us know, he is a very busy person. It is very difficult to spare time of an administrative officer to spare the time. It is just next to impossible, but he has spared the time. So I am very thankful to Dr. Santosh Kumar ji. I am welcoming all my faculty members, students and colleagues to this webinar. This COVID-19 crisis has given the opportunity to learn from online e-learning platforms. As our technical course has already completed, our students are preparing for their end semester exam, or the final year students, they are preparing for their career. So this topic of the time management is very important for their life, for their career. Keeping in this view, we have arranged a seminar, and hopefully all of our students will learn the time management. This is one of the key to start a good career. As we know, all our students, while in
the years of education, the time management is one of the most important things to give a start to your career. Once you reach your teenage, you must follow the route to effective time management. You should remember this always, that in your life you are granted with a good news and bad news. The bad news is that time flies, while the good news is that you are the pilot of that flight. You have to manage the time so that you can success in your life. And you know, the success being happy, but the success means that your life should be useful to others. Your life should be honorable, to be compassionate, to make some difference that you have lived and lived well. Charles Darwin, as you know, an English naturalist and geologist best known for his contribution to the science for evaluation, once said, a man who dares to waste an hour of life has not discovered the value of life. जो अपने जिंदगी का 1 घंटा भी व्यर्थ गंवाता है, वो अपने जिंदगी के महत्व को नहीं जानता. Definitely, time is the key to success. It is undeniable truth that every living being into existence has a limited span of time. The only difference being that some have more while some have a little less than others. The Lord Chesterfield has told that take care of the minutes and the hours will take care of themselves. Time is one of those precious things that has the powers to turn into a billionaire or a beggar at the same time. All that you need to do is to take control over time before it takes control over you. It is the most valuable coin in your life, and you being the owner must determine how, when and where to spend it. Dear students, don't get confused with to do and what not to do. Which task to be put first on your priority list and which one to be put last. Don't worry, we are here with our expert speaker, Dr. Santosh Kumar ji, who will definitely help you out. As we know, you people are busy with the exam preparation. Just to relieve your tension or stress of your examination, we have arranged this topic of time management, and hopefully you will listen, you will understand, and you will know. Not only that, you will implement also the time management in your life, and you will reap all the benefit of this webinar. In short, our technical expert is there to elaborate the time management. But we want to mention one thing, that just like each one of us gets only 24 hours in a day, the time management is something that is important for every living being in order to follow the path of success. We often subscribe to the idea that staying busy means we are working hard. बहुत व्यस्त हूँ मैं, बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, बहुत बिजी हूँ. नो. और इतना कर देने पे we rest assured of our success. Well, such thoughts unfortunately prove us wrong. For instance, if you spend your whole day completing numerous tasks at a time,
you would end up missing all the tasks, and neither of your report would give you the end result. Rather, if you would have allotted few hours separately to each of the important tasks, all of them would have been completed efficiently at the end of the day. एक काम को लीजिए, एक काम खत्म कीजिए, फिर दूसरा काम लीजिए, दूसरे काम को खत्म कीजिए, प्रॉपर प्लान कीजिए, एक एक काम को एक एक बार खत्म, सब काम एक बार उठाइएगा, सब काम मिस हो जाएगा और पूर्ण कोई काम नहीं हो. This is where we realize the importance of effective time management, and thus we need to learn how to work smarter and not just harder. Our learned speaker will give you all the tips required for the time management. So I am handing over the platform to our speaker, and once again I welcome all our faculty members, the principals, teachers and students to concentrate on the topic and implement all the tools which we are going to discuss today. Once again, I thank our learned speaker to spare the time from his busy administrative schedule. Thanks, Dr. Santosh Kumar. Thanks, Dr. Anupma. Anupma ji, over. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words, for give inspiration to all of us. Now I request Dr. Santosh Kumar, DPM Jivika, to deliver their words. Over to sir. You hear me? Please unmute करें sir. Hello. Good afternoon to all of you, and respected principal sir and team NGP पटना, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए. मैं देख रहा हूँ अब तक 265 पार्टिसिपेंट, फैकल्टी and the large student has been connected. Really, it's an opportunity for me also to be connected with you all, and hope I will come up to your expectation. तो मैं सीधे बात करूं तो देखा जाए टाइम मैनेजमेंट पे सर ने भी, प्रिंसिपल सर ने भी काफ़ी ब्रीफ में चीज़ों को प्रेजेंट किया कि टाइम कितना इम्पोर्टेंस है. बैड न्यूज ये है कि टाइम फ्लाई करता है, और गुड न्यूज है कि यू आर द पायलट ऑफ द फ्लाइट. तो इसको लेके हम किस तरह आगे बढ़ें, अपने शेड्यूल को, डे टू डे लाइफ को कैसे मैनेज करें, इसको लेके मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, मैं आपसे बातें करूंगा, और मैं आपको जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे मैं डिटेल्स में जाऊंगा. मैं पीपीटी आपको लगा रहा हूं, और उसके बाद मैं आप देखेंगे पीपीटी, और मैं अकॉर्डिंगली आपसे बात करूंगा. तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली इट्स एन आर्ट. Time management is an art. It is arranging, organizing ourselves and budgeting time. 24 आवर जैसा सर ने भी कहा, 24 आवर को हम किस तरह बजटिंग करते हैं, कौन कौन से टास्क के लिए करते हैं, और क्या हमें आउटपुट चाहिए. जैसे
कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। और उसमें अमाउंट में हम कितना पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कंट्रोल कर पाते हैं और उससे हम क्या आउटपुट लेके आते हैं, प्रोडक्टिव कितना लेके आते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यही है। और इसमें कही जाए तो 4 आदतें मन में है संसार में: समय का पालन और यथार्थ दृष्टि जो होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए और कार्य कुशलता। इन 4 आदतों के बल पे कोई भी मनुष्य बड़े से बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, जिससे आगे भी हम जाएंगे। अब वी ऑल हैव 4 टाइप ऑफ वेल्थ। थोड़ा सा स्लाइड्स हेजी आ रहा है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। We all have 4 type of wealth. First is our body, second is idea, third is money and other is wealth, time. देख रहे हैं कि 4 टाइप ऑफ वेल्थ में बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारी तभी प्रॉपर रह पाती है जब हम, जैसा हमने कहा कि सभी के पास 4 तरह की वेल्थ होती है। तो पहला हमारा बॉडी है। बॉडी, अगर हमें बॉडी को ठीक रखना है, फिट रखना है, तो नेचुरली हमें टाइम के साथ फूड लेना होगा, विटामिन लेना होगा। अगर हम थोड़े बीमार हैं तो प्रिवेंटिव केयर्स लेने होंगे, थोड़े कहीं ना कहीं मेडिसिन की भी जरूरत हो। तो जब तक हम अपने बॉडी को टाइमली सब कुछ नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट्स, फूड, ब्रेकफास्ट सपोज सुबह करना है और अगर हम ब्रेकफास्ट को डिले करके 12 बजे के लिए, तो नेचुरली वो हमारे पेट में गैस की प्रॉब्लम आ जाएगी और बॉडी हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। और जब तक बॉडी हमारा हेल्दी नहीं होगा तो वी कैन नॉट गिव एंड क्रिएट एन हेल्दी आइडिया और क्रिएटिव आइडिया और इनोवेटिव आइडिया। तो कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड गिव हेल्दी आइडिया। तो हमारा बॉडी पहला जो हमारी वेल्थ है, उसके बाद जब वो बॉडी ठीक रहेगी तो हमारे आइडिया भी बेस्ट आएंगे। और आइडिया जब बेस्ट होंगे, बॉडी हमारी ठीक है, तो नेचुरली हम कहीं ना कहीं एक जो हमारे एम है उस पर पहुंच पाएंगे। अगर हम जॉब में हो, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो, और उस माध्यम से हम मनी को अर्न करें। और जो फोर्थ है दैट इज टाइम। तो टाइम इट गिव्स ऑल टाइप ऑफ टाइम गिव्स द बर्थ ऑफ ऑल अबाउट 4 टाइप ऑफ वेल्थ। ये क्लियर है कि जब तक हम टाइमली सभी चीजों को नहीं करेंगे, बॉडी को नहीं ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज टाइमली नहीं करेंगे, फूडिंग नहीं टाइमली करेंगे, तो आइडिया नहीं आएंगे। आइडिया नहीं आएंगे तो मनी नहीं आएगा। मनी नहीं आएगा तो फिर पूरा हमारी लाइफ अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो 4 टाइप ऑफ वेल्थ है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम चीजों को टाइमली अरेंज करें। तो पूरे फैक्टर में देख रहे होंगे कि टाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और टाइम ही है जो सभी चीजों को दे रही है जन्म। तो 4 तरह के जो मानव के संसाधन है उसको वर्थ कौन दे रहा है? टाइम दे रहा है। नेक्स्ट, अब इसी तरह हमारे लाइफ में 4 तरह की चीजें हैं। पूरी अगर जितने हमारे टास्क हैं, जितने हमारी ड्यूटी हैं, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसको 4 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। दैट फर्स्ट कम दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी टू अचीव आवर गोल। हमने कोई टारगेट सेट किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कहाँ तक जाना है अपने कैरियर को लेके, किस पीक लेवल पे क्या बनना चाहते हैं। जस्ट डिप्लोमा होल्डर से फिर आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जिस तरह के आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप काम करना चाहते हैं, वो आपका एक गोल होगा। तो दैट इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू अचीव दैट गोल। और उसके लिए आपको समय के एक एक पल का उपयोग करना होगा। कहते हैं ना कि उत्कृष्टता प्रतिदिन कुछ छोटे व अच्छे कार्यों को करने से लगातार आती है, और लगातार हम करते रहें। अगर मान लिया 1% भी इम्प्रूवमेंट हम अपने आप में करें तो विद इन 100 डे वी कैन इम्प्रूव अप टू 100%।
तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स टोटली इन आवर कंट्रोल कि भाई हम अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं, बजटिंग जो हमारा 24 आवर का है उसको हम कैसे करते हैं। और दूसरा है कि वे टाइम वैसा चीजें जो नेसेसरी फॉर जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए है, रूटीन जॉब है, अगर आप 10 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप हैं, तो आपके लिए क्लास अटेंड करना एक जॉब है, तो वो अटेंड करना है, लेकिन सिंसियरली विथ फुल माइंड एंड फुल हार्ट। अगर आप हाफ हार्टेड हाफ माइंड से क्लासेज अटेंड करेंगे, यू विल नॉट लर्न, नॉट बी एबल टू लर्न बट फॉर विच यू हैव बीन एडमिटेड देयर, you have got an opportunity to attend the classes. तो ये सेकेंड टाइप ऑफ है कि भी जो नेसेसरी फॉर बर्थ। थर्ड इज नेसेसरी फॉर सोशल एंड फैमिली लाइफ। हर एक किसी का, आपके भी आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके कहीं ना कहीं सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशन है, अगर फैकल्टी हैं तो उनके अपनी फैमिली लाइफ है, उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और इट हार्डली मैटर कि हाउ लॉन्ग वे लिव, हम आप सभी लोग कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, बट व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी और फॉर द फैमिली, इट मैटर्स द मोस्ट। तो ये 3 तरह के वर्क आए कि भी नेसेसरी फॉर अचीव गोल, नेसेसरी फॉर जॉब और स्कूलिंग और कॉलेज और स्टडी, और नेसेसरी फॉर सोशल एंड फैमिली। And fourth one is that which may not be done, even then life goes smoothly. सबसे हमें ज्यादा जो फोकस करने की आज की डेट में जरूरत है इन्हीं चीजों पे, कि कौन से वैसे कार्य हैं जो हमें नहीं करें तब भी हमारी लाइफ स्मूथली चले। आज टेक्नोलॉजी के हम युग में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सारे लोग, मोस्ट ऑफ द 90% 80% लोग अननेसेसरी हम वेस्टेज ऑफ टाइम 1 आवर और 2 आवर कर रहे हैं कि अनवांटेड सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया कुछ जरूरी भी है, लेकिन अनवांटेड मैटर में यूज कर रहा हूँ। अनवांटेड सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लाइफ में, डिसलाइफ में, अननेसेसरी आर्गुमेंट में, पॉलिटिकल में, जो उसको हम न भी करें तो हमारी लाइफ स्मूथली चल। अननेसेसरी गॉसिप में हम चले जाते हैं, और गॉसिप को क्या होता है, वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, तो हमें स्ट्रेस देता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, हम वहां से रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इसको नहीं भी किया जा सकता है, इसको अवॉइड करना है। इन चीजों, टीवी सीरियल, मोबाइल गेम्स सभी लोग देख रहे होंगे। अगर आप एयरपोर्ट पे 10 मिनट पहले पहुंच गए, स्टेशन पे पहले पहुंच गए, तो आप मोबाइल गेम, यूटिलाइज दैट प्रीशियस टाइम फॉर योर कैरियर, फॉर योर प्लान, और 24 आवर जो आपने बजटिंग किया है जो टाइम का, उसमें आप इन्वेस्ट करें। कोई बात विवाद में न पड़े। अपनी बातों को, कई लोगों की आदत होती है हमेशा प्रूफ करने के लिए लगे रहना। अब अगर इन फ्रंट ऑफ पीपल जो आपके सामने है उनको कन्विंस नहीं हो रहा है, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, कि आप वहां अपनी टाइम को वेस्ट कर दें कि भी उनको प्रूफ करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम किल करेगा। शॉपिंग में जा रहे हैं, एक्स्ट्रा शॉपिंग कर रहे हैं, आपने 20 मिनट के लिए प्लान करके कि आप 2 घंटे शॉपिंग कर, कोई एडिक्शन में आपकी आदत है, किसी चीज के एडिक्टेड हो गए हैं, तो उन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। तो अवॉइड टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल वो पीपल्स होते हैं जिनको अपने लाइफ में कोई मकसद नहीं होता। अब उनको अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो फिर आपकी लाइफ को भी पॉल्यूट कर देंगे। तो इन चीजों को, टॉक्सिक पीपल के पास वो 4 चीजें होती, 4 C होते हैं उनके पास। वो क्या करेंगे, आपको कन्वे करेंगे, आपको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद वो अल्टीमेटली आपको कंफ्लिक्ट पैदा करें। तो इन 4 चीजों से आपको बचने की जरूरत है। 4 C, अवॉइड टॉक्सिक पीपल्स। तो ऐसा ना कि महत्वहीन कार्यों के बदले हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को न्यौछावर कर दें, ऐसा नहीं करना है। ये 4 टाइप ऑफ वर्क में यही मैं लास्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा था। 3 पे तो हम करते हैं सभी लोग, लेकिन जो नहीं करना चाहिए इस पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई टाइम मैनेजमेंट। जैसा सर ने कहा, और हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने आप को मैनेज करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा।
तो क्या देगा, प्रोडक्टिविटी देगा, हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम गेन इन 24 आवर, ये तो सभी को पता है कि 24 आवर ही आपके पास है। अब इसी में कोई लड़के बेहतर कर पाते हैं, कोई लड़के नहीं कर पाते हैं। बेहतर वही करते हैं जो 24 आवर को बेहतर वे में मैनेज कर लेते हैं, और जो नहीं वही नहीं कर पाते हैं, जो टाइम को अपने आप को मैनेज नहीं किया 24 आवर में। तो ये देखना होगा स्ट्रेस रिडक्शन। अगर हम पूरी तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम अपने आप को कहीं ना कहीं टेंशन में पाएंगे, क्योंकि हमने प्लान किया था 10 चीजें, लेकिन प्लानिंग हमारी प्रॉपर नहीं थी, बजटिंग उसको हमने नहीं किया पूरी तरह से, तो वो हमारी चीजें नहीं हो पाई, तो वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस देगा। सेल्फ स्टीम इम्प्रूवमेंट, अगर आत्मसम्मान की बात करें तो इसके लिए भी टाइम की जरूरत होती है। पैशनेट ये हमें बनाता है और ऊर्जावान बनाता है, स्वतः स्फूर्ति लाता है। तो इन चीजों को करने के लिए ही टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, अपने आप को बेहतर करने। अचीवमेंट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, अगर लाइफ में आपको बैलेंस बना के चलना है, फैमिली लाइफ है, किसी की जॉब लाइफ है, किसी का फिर स्टडी लाइफ है, किसी का और कोई कैरियर है, कोई बिजनेस भी है, मल्टीपल टास्क यू आर डूइंग, तो आपको बजटिंग किया होगा ना 24 आवर में कितने कितने समय किसको देना है। और ये अगर आपने बेहतर तरीके से, जो जितने बेहतर तरीके से करेंगे वो उतने सक्सेसफुल होंगे, वो उतने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अवॉइड मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन क्या है, कभी कभी हम जब टाइम को मैनेज नहीं करते तो अपने आप को हम इंगेज नहीं रख पाते हैं, तो परिस्थितियां ऐसी आती है कि हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं। तो उन चीजों से हमें बचने की जरूरत होती है, इसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट चाहिए, अपने आप को इंगेज रखना। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं, क्योंकि उसने प्लान ही नहीं किया उन्होंने, और प्लान नहीं किया, आपने सोचा कि कोविड में क्या है 3 महीने हम ऐसे ही इंजॉय कर लें, तो आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास नहीं है, कुछ आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, तो ये चीजें भी हमें देखने की जरूरत होती है कि हम अपने आप को लोनलीनेस नहीं रखें, वो हमें डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। अपने आप को इंगेज रखें, अपने आप को क्रिएटिविटी में लगा के रखें, इनोवेटिव आइडिया जनरेट करते रहें, तो ये तभी सब होगा, और इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। और ये सब होगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे इन एबिलिटी कि आप कितना क्या कर सकते हैं। और नेवर कंपेयर विथ अदर। हर एक आदमी में अलग अलग क्वालिटी, हर एक पर्सन में, हर एक स्टूडेंट, आप अगर हैं 200 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट है, तो सभी ऑल आर यूनिक, ऑल हैव यूनिक डीएनए, ऑल हैव यूनिक जीन, ऑल हैव यूनिक मतलब यूएसपी जिसको कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो आप अलग अलग क्षेत्रों में मिरेकल कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, बशर्ते आप बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करें और आप सेल्फ जो होता है ना कि भाई आप बेहतर से बेहतर कर सकें वो, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैंने आपको कहा कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, और वो तभी हो सकता है। और ये सारे जब चीजें करेंगे तो आप गोल को अचीव कर लेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि आप गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं अगर आप बेहतर टाइम मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये देखेंगे पूरे क्रक्स है कि इम्पोर्टेंस हम कितना दे रहे हैं टाइम को। एक ऐसा संसाधन है जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, वह आएगा और चला जाएगा। तो ये फ्लाई करता रहता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाइट। और ये सबसे बेहतरीन था कि भाई लॉकडाउन में देखेंगे कि कोविड के लॉकडाउन में कई ऐसे, आप में से स्टूडेंट में होंगे, फैकल्टी में होंगे, हम खुद भी हैं कि कई चीजें नहीं सीखा हम, कि क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को समझा वो कि भाई अभी टाइम की डिमांड क्या है। कई लोगों ने, हो सकता है घर में फीमेल हो या मेल भी हो, बैचलर भी हो, तो जिनको कुकिंग नहीं आती थी वो कुकिंग सीख लिया बेहतर वे में। तो वो चीजों का इम्पोर्टेंस था कि वो टाइम को आपने यूटिलाइज किया। तो हम ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, तो बहुत बड़ी बात है। आप 3 साल के कोर्स के लिए आप यहाँ पे एनजीपी में रजिस्टर्ड हुए हैं, आप एडमिशन लिया है, तो 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है। हम 1 मंथ से आपसे शुरू करते हैं, तो
1 मंथ तो लगेगा, बहुत छोटा टाइम है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्या किया जा सकता है? नहीं, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा मतलब वैल्यू है अगर सोचेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप सबों को कि जो प्री मैच्योर बर्थ होते हैं, बर्थ जनरली फीमेल 9 मंथ के बाद जो होता है कि बच्चे की डिलीवरी होती है, अगर वो किसी कारण बस 8 महीने में ही बच्चा पैदा हो गया, इमेजिन दिस एग्जाम्पल कि वो थ्रू आउट लाइफ उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ, उसकी ग्रोथ, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी आइडिया सभी को अफेक्ट करे परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं 1 महीने का इतना बड़ा वैल्यू है कि अगर प्री मैच्योर बर्थ होने से वो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू है। 1 वीक की बात करें, वीकली न्यूज़पेपर अगर कोई पब्लिश हो रही, 10 सालों से उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपके घर वो वीकली न्यूज़पेपर नहीं आया, आपने थोड़ा सा मिस किया, लेकिन उसका पूरा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो कि 1 वीक उसने न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर पाया, उसकी रेटिंग खराब हो, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। 1 डे की हम बात करें तो लगता है कि आज तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 डे का इम्पोर्टेंस तब है जब आप उसको पूछो जो मॉर्निंग से इवनिंग तक काम करता है तब खाता है, वो अर्न डेली फॉर देयर फूड, और तब वो अपने बच्चों को खिला पाता है, खुद खाता है। तो ये वैल्यू है 1 डे की। इवन हम 1 मिनट में जाए तो लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो अभी 15-20 मिनट से जुड़े हुए हैं ये वेबिनार में, तो 1 मिनट क्या है, इसकी भी वैल्यू है। आपका स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज आप दिल्ली में सेंटर है, आपने तैयारी की और गया और स्टेशन पे पहुंचते पहुंचते आपकी ट्रेन चली गई। आप सोचिए 1 मिनट की देरी से आपकी ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई, और आप एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाए, जबकि आपकी ग्रेडिंग, आपकी मार्किंग, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, देयर वाज 100% चांस कि यू विल बी सिलेक्टेड, बट 1 मिनट लेट होने से आपकी फ्लाइट छूटी, ट्रेन छूटी, और आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कैरियर को कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इमेजिन कई लोग एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो, किसी तरह वो डिले हो गया 1 मिनट का, जब तक हॉस्पिटल पहुँचते 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले पहुँचते डॉक्टर अटेंड कर, डॉक्टर 1 मिनट लेट से आए और 1 मिनट लेट से पेशेंट पहुँचा और पेशेंट कोलैप्स कर। वैल्यू यहाँ से आंकनी होगी। आप वैल्यू अगर 1 मिनट की देखनी होगी तो इस तरह से देखनी होगी। आप देखते होंगे एक्सीडेंट हो जाता है, 1 मिनट आप आगे पीछे हुए एक्सीडेंट, तो 1 मिनट का भी वैल्यू है। लास्ट में हम 1/10 ऑफ द सेकेंड की बात करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम अगर नॉर्मल बात करें तो एक शब्द कहने में भी 1 सेकेंड, कई शब्द ऐसे हैं जिसको कहने में 1 सेकेंड से ज्यादा लग जाए, हम फील नहीं कर पाते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी बहुत बहुत वैल्यू। हम सभी ओलंपिक गेम से परिचित हैं। आप ओलंपिक गेम में देखिए, कोई गोल्ड मेडल लेता है, सेकेंड सिल्वर मेडल लेता है, थर्ड ब्रॉन्ज मेडल लेता है, और उसके देखेंगे कि टाइम कितना ड्यूरेशन गैप है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जिसने सिल्वर ले लिया, गोल्ड नहीं ले पाया, थ्रू आउट लाइफ मिस करेगा। तो सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी वैल्यू है। तो हमें ये देखना होगा कि हम कैसे अपने आप को कितने मैनेज करते हैं, टाइम के साथ इम्पोर्टेंस कितना देते हैं। अगर हम बात करें जनरल की, अगर एक डाटाबेस कहता है रिसर्च का कि अगर आप 15 मिनट डेली पढ़ते हैं, आप सारे स्टूडेंट हैं, हम सभी पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, तो 15 मिनट अगर डेली पढ़ते हैं तो आप 15 किताबें साल में पढ़ जाते हैं, बशर्ते कि आप डेली उस रूटीन में कभी ब्रेकअप नहीं हो, किसी तरह का कोई भी व्यवधान आए, कितने आप अंडर प्रेशर हो, कितनी आपकी इमरजेंसी हो, वो 15 मिनट छूटे नहीं, तो आप साल में 15 किताबें कम से कम पढ़ें। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। मुझे 2016 में एक मौका मिला प्रोफेसर अमर सिंह के साथ जुड़ने का, नोबेल लॉरेट जो इकोनॉमिक्स के रहे हैं।
तो उनके साथ मुझे 3 दिन नालंदा में रहने का मौका मिला। तो उनकी जो एक खास बात मैंने लास्ट में सर से पूछा कि सर वैसे कौन सी चीजें हैं जिसको आप डेली करते हैं कंटिन्यू, तो यू विल बी सरप्राइज कि वे उस एज में भी नोबेल लॉरेट है, वो 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ते हैं। तो सोचो कि टाइम का कितना वो मैनेजमेंट उनके पास होगा, किस तरह से उनकी बिजी लाइफ है, उन पे रिसर्च हो रहा है, वो कितने लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। लेकिन वो फिर भी 2 घंटे का टाइम वो अपने आप में बजटिंग कर रखा है कि ये पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इतना तो मैं हर दिन करता हूँ, अगर मैं एक दिन मिस हो गया आधे घंटे तो मैं नेक्स्ट डे रिकूप कर लेता हूँ, 1.5 घंटे दे देता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बहुत है, और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ही है जो देखेंगे आप ने लाइट का आविष्कार थॉमस एडिसन अल्वा ने किया था। एक बार उन्होंने क्या किया कि वे ऐसे मीडिया में दे दिया कि वे हम 2 साल में लाइट का आविष्कार करते। अब लोगों को बड़ा हो गया कि 2 साल में ऐसा कैसे, अंधेरे से प्रकाश आ जाएगी, किसी को बिलीव नहीं हुआ। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट करके उनको भी लगा कि अब इस टास्क को कैसे पूरा करें, तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई 50 लोगों की, और उस टीम को लगाया इस तरह से कि भाई हर एक टीम का मेंबर 4 से 5 घंटे ही रेस्ट करेगा। और वो टीम, आपको पता होना चाहिए कि वो टीम ने मतलब टाइम से पहले 4 सितंबर 1882 था, न्यूयॉर्क हेराल्ड में न्यूज आई हेडलाइन के रूप में कि टाइम से पहले थॉमस एडिसन अल्वा ने लाइट का आविष्कार कर। और उसके पीछे जाएंगे तो ये पता चलेगा कि उनमें 199 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए, लेकिन वो टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बहुत है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 मिनट, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर और 3 ईयर, तो बहुत कुछ आपको दे सकता है, बशर्ते आप अपने आप को टाइम से लिंक बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हाउ पीपल मैनेज देयर टाइम, कैसे मैनेज कर। आपके पास जैसे 3 ईयर का है तो आप उसको ब्रेकअप करेंगे ना, ईयर वाइज ब्रेकअप करेंगे, इसलिए सेमेस्टर वाइज कोर्सेज बनाए जाते हैं। फिर उसको आप मंथली ब्रेकअप करेंगे, फिर वीकली ब्रेकअप करेंगे, फिर आप डेली ब्रेकअप करेंगे, फिर आवर में ब्रेकअप करेंगे। तो गोल सेट करने के लिए इसके बाद आप क्या क्या एडिशनल चीजें पढ़ते हैं, स्किल की पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे होंगे, जनरल नॉलेज पढ़ रहे होंगे। तो जो जितना बेहतर अपने आप को सेट करेगा गोल को, उसी तरह से वो आगे अचीव भी करेगा। और प्रायोरिटाइज योर वर्क, अब उसमें से जितने आपने चीजें की है, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, ये प्रायोरिटाइज आप ही को करना है। और जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक चीजें बेहतर वे में नहीं आएंगे। रिजल्ट उसका जो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट है, जो टारगेट आपने फिक्स कर रखा है, जो एम और गोल रखा है, वो नहीं अचीव। ऑर्गेनाइज, कहते हैं ना डिसऑर्गेनाइज आप हो गए तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएगी। तो ऑर्गेनाइज वे में रहना है कि भाई प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। वन एंड सेम थिंग है कि भाई आप गोल को सेट कैसे करते हैं, प्रायोरिटाइज क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। कई बार ऐसा होता है, लर्न व्हेन टू से नो। कई बार हो सकता है आपका स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, फोन कॉल आ गया एक फ्रेंड का, विल टेक 20 मिनट। यू हैव टू करेज, यू हैव टू लर्न से नो। मैं अभी कॉल नहीं लूंगा, मैं अभी ये काम नहीं करूंगा, मैं अभी गॉसिप में नहीं जाऊंगा, अभी मैं मार्केटिंग में नहीं जाऊंगा, अभी मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें अगर नहीं करते, कहना सीखा, तो पता चला 10 मित्र ऐसे मिल गए, आपका आधे घंटे के 5 घंटे किल कर। यूज योर वेटिंग टाइम। अगर स्टूडेंट है, आप वेटिंग टाइम कहीं भी कॉलेज में आ गए, पहले 10 मिनट आपके पास टास्क एट हैंड होता है, कंसंट्रेट करो आप उसको। है आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, आपको कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा, पेपर पे आप लिखो पेन लेके और उसको यूटिलाइज करो उस टाइम को। वेटिंग टाइम को, आप फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे इस टाइम को यूटिलाइज करें कि क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण टास्क वो है जो अभी है। तो चाहे आप वेटिंग में हो, चाहे वो आप एट प्रेजेंट, कंसीडर योर पर्सनल प्राइम टाइम। पर्सनल प्राइम टाइम जो बॉडी क्लॉक है हमारा 24 आवर का, वो सभी के लिए अलग अलग है। कोई आदमी मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, कोई लेट नाइट में कंफर्टेबल है, सभी का प्राइम टाइम अलग होता है।
देखते हैं, प्राइम न्यूज भी आता है। तो इसलिए चैनल पे आता है 8 से 10 के बीच में, तो उस समय ज्यादातर लोग घर पे होते हैं, टीवी देख पाए। उसी तरह आपके पर्सनल प्राइम टाइम होंगे, मेरे पर्सनल प्राइम टाइम। मेरे से पूछेंगे तो मैं ऑफिस बिफोर 45 मिनट आता हूँ, वो मेरा प्राइम टाइम होता है ऑफिस के लिए, क्योंकि वहाँ मैं चीज़ों को एकदम अरेंज कर पाऊँ और जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं उसको मैं डिस्पोज कर पाऊँ, उसमें मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो आपके लिए भी स्टडी करते हैं तो प्राइम टाइम होगा, उस टाइम को ही आप बेहतर यूज करें और उसमें सब मतलब रिजल्ट ज़्यादा आता है। मेरा कहने का सेंस ये होगा कि अधिकांश लोग लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही हार मान लेते हैं और वो तब हार मान लेते हैं और फिर लक्ष्य नहीं पहुंचते हैं, जबकि आप 2 कदम दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो ऐसे हार नहीं मानना है, प्राइम टाइम को यूज करें। प्राइम टाइम में आप जब एनर्जी लगाएंगे, आप जब स्टडी करेंगे, जब कोई भी चीज़ें करेंगे तो उसके रिजल्ट दूसरे टाइम से ज़्यादा आएंगे। और उसके बाद है सेलिब्रेट सक्सेस। फील करें कि हमने इस पड़ाव को तो पार कर लिया। अब जैसे हम यहाँ से बात करें, यहाँ से दिल्ली की सफर तय करनी है 1000 किलोमीटर। कोविड में देखा होगा कई लोगों ने पैदल आई आगे, क्या किसी ने सोचा होगा कि हम 1000 किलोमीटर रास्ते पैदल चलेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर सक्सेस तो किसी ने मनाया नहीं होगा। नहीं, सभी ने सक्सेस मनाया होगा, वो लेवल अलग अलग होगा, क्योंकि आप 1 से 1000 किलोमीटर के बीच में हर एक किलोमीटर में वो पिलर डाल रखा है PWD वाला, रोड वाला। वहां से हम हैप्पी फील करते हैं कि हम 900 किलोमीटर क्रॉस कर गए, दैट इज आवर सक्सेस सेलिब्रेशन। तो ये आपको भी होना चाहिए कि अगर मैंने ये टास्क, ये सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ लिया एक बार, तो ये सेलिब्रेशन है। अब मैं इसको रिपीट करूंगा तो 2 घंटे लगेंगे, पहले पढ़ने में मुझे 2 दिन लग गए। तो ये होना चाहिए कि वो जो पीपल जो मैनेज करते हैं अपने टाइम को बेस्ट वे में, तो ये भी करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंपल है, आप गो थ्रू हो लेंगे। वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेज ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट टू बी डन एट ऑल। उसकी कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में करने के लिए, और उसको आप बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। इससे बेस्ट यूज ऑफ टाइम नहीं हो सकता कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, आप उसको बहुत रिफाइंड वे में कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ना आपके जो गोल है, जो टारगेट है, जो आपके सफलता की सीढ़ियां हैं, उसमें कहीं कोई रोल प्ले नहीं। कई लोग कहते हैं कि समथिंग फास्टर, ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता राइट थिंग। जो हम राइट थिंग करेंगे वो सबसे बेस्ट हो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा। वाई पीपल आर नॉट मैनेज आवर टाइम। कुछ ऐसे पीपल होते हैं, भाई कहते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पाते। तो वही कहते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज, अनक्लियर है अपने आप को ऑब्जेक्टिव को लेके, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं किया, लेट नाइट में प्लानिंग नहीं किया कि हम कल क्या क्या काम करेंगे। अगर मुझे यहाँ से जाना है राजा बाजार, तो राजा बाजार जाना है तो मैं उस बीच में जितने भी काम होंगे सभी का लिस्टिंग कर लूंगा कि पहले यहाँ पे राजवंशी नगर आएगा, फिर राजा बाजार आएगा, फिर वहां से रिटर्न में इधर से आ जाएंगे तो ये काम कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको आपको अरेंज करना होगा, अनऑर्गेनाइज वे में नहीं रहना। इनएबिलिटी टू से नो, जो अभी मैंने बताया कि आपके इंटरप्शन बहुत सारे होंगे, मोर इंटरप्शन होंगे। अगर आप नहीं कहना जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके फ्रेंड डिस्टर्ब करेंगे और आपका टाइम किल करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं बताऊँगा। मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं और अच्छे पद पे हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को एक बार ना कहा। क्यों कहा ना? क्योंकि अपने पेरेंट्स को ना करके उन्होंने अपने प्रेशियस टाइम को यूटिलाइज किया और उस टाइम को उन्होंने मेरे से बाद में शेयर किया कि सर मैंने इसलिए ना कहा कि आज मैं अगर पेरेंट्स को 1 घंटे देता हूँ तो शायद पता नहीं लाइफ में इनकी कितनी चेंजेज आएगी, लेकिन मैं अगर बेहतर बन जाता हूँ, बेहतर से बेहतर इंसान, तो मैं इनको वो सुविधाएं दे सकता हूँ, उस लेवल पे सेटिस्फैक्शन दे सकता हूँ जो शायद इन्होंने ड्रीम भी नहीं किया। और वही हुआ। वो आज बहुत अच्छे वजह पे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब नो कहना की सीखिए। और वही लोग फेलियर होते हैं जो ना कहना जानते ही नहीं।
ये कोई भी आया, ठीक है, आइए आइए आपकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप। और टू मेनी थिंग्स ऑफ एट एनी टाइम, एक टाइम में बहुत सारी चीजें करना है। ये क्लियर करना होना चाहिए कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। हम लोग लिस्टिंग करते हैं ना, डू और डोंट, करना है और नहीं करना, तो ये लिस्टिंग करनी चाहिए, और नहीं करते हैं तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं टाइम। यही बेसिक चीजें हैं। और ये हमें क्या ले जाता है, स्ट्रेस भी देता है, हमें थकावट भी देता है। हम दिन भर वर्क ही वर्क करते हैं, कोई ज्वाइन नहीं मिलता है, कहीं कोई मतलब सेलिब्रेशन नहीं होती। कई लोग सोचते हैं नो मैटर व्हाट आई डू आई डोंट हैव एनफ टाइम। तो इनफ टाइम अगर आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं किया, और तो आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा, और तब आप कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते। कई लोग बोलेंगे कि आई वर्क अंडर मोर अंडर प्रेशर। ऐसा नहीं है। आपका ये कहना कि हम प्रेशर में ज्यादा काम करते हैं, मुझे तो, मैं पर्टिकुलरली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ। एक कई बार होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें समय नहीं। आप सोचिए कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल तो लेना पड़ेगा ना। क्या आप बिना पेट्रोल के टाइम आपके पास इतना नहीं है कि आप चलते चले जाएंगे? ऐसा संभव है? ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अंडर प्रेशर नहीं कुछ होता है, वो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड अनमैनेज टाइम, आपका जो है लाइफ स्टाइल है, उसी को दर्शाता है और कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं हमने अपना अपॉइंटमेंट कैलेंडर में बना दिया, लिस्टिंग कर लिया है। दैट्स नॉट गुड एनफ। वो तो एक आपका टूल है ना, वो एक कहीं ना कहीं आपको सुविधा देता है, लेकिन जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपने बना रखा है, आज के मोबाइल में भी कैलेंडर आ रहा है, उसमें आपने बना रखा है इतने बजे, लेकिन बेहतर वही आदमी है जो उसको एग्जीक्यूट कर दे। एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हम एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, टाइम इज फाइनाइट, आई एम एंगेज्ड इन सेवरल वर्क। तो ये तो इन्फिनाइट है, इस तरह की चीजें हैं, तो इससे कुछ नहीं होना। व्हाट वी कैन डू फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट, पहले भी हमने बताया, सभी लोग जान रहे हैं, इससे कोई नई टॉपिक नहीं है। लेकिन ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है ऑब्स्टैकल कौन कौन से बैरियर है जो हमें, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उस रास्ते में कौन कौन से बैरियर है। टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं जो आपको कहीं गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। टू मेनी फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप अननेसेसरी गॉसिप टाइम किल कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि बैरियर कौन कौन से, तो सभी के लाइफ के अलग अलग बैरियर हैं, और उस बैरियर को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, फैमिली बर्डन किसी का होगा, उसको कैसे मतलब स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ओवरकम उससे कैसे हो सकता है किसी के पास पैसे कम है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पैसे नहीं है तो पढ़ नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने मतलब बिना पैसे रहते हुए गरीबी में भी आईएएस के एग्जाम कंप्लीट किए हैं। आप न्यूज में देखते होंगे रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्स्टैकल को रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको ओवरकम कैसे करेंगे, और उसने अपना गोल सेट कर लिया, और गोल सेट किया, वो स्पेसिफिक रहा कि हमें आईएएस बनना, मेजरेबल रहा, इतने टाइम में बनना है, अचीवेबल गोल सेट किया और रियलिस्टिक गोल सेट किया और उसके अकॉर्डिंगली काम किया। तो ऐसा नहीं है, जब हम किसी काम को करने के लिए चीजों को करेंगे और डिसीजन ले लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते हम टाइम को मैनेज करें। आप बिल गेट का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, जो भी इनके करीबी मित्र हैं और जो मीडिया आज तक कहती आई है, न्यूज और पेपर कहते हैं कि इन लोगों को सोते हुए किसी ने देखा ही नहीं कि सोते कब है, और तब कहीं ना कहीं सोते जरूर है, लेकिन ये अपने टाइम को जर्नी में 2 घंटे सो लिए या कुछ और कर लिया। तो आपको जब ग्रेट बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो यू हैव टू मैनेज टाइम इन ए वेरी वेरी मतलब फैंटास्टिक वे कि आप कितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं टाइम को मैनेज।
नेक्स्ट में देखिए इसी में कंटिन्यू करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, प्रायोरिटाइज होगा। और फिर लाइफ में देखेंगे कोई भी चीजें, जैसे मैंने पहले भी स्लाइड में बताया था पीछे के कि किस 4 कैटेगरी में आते हैं काम। तो इसको करना है, बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, डू इट नाउ, एकदम अभी से अभी कर लेना। कुछ ऐसे काम होते हैं अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट, आप अपने फ्रेंड से भी डेलीगेट करके आप काम करवा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से, सिस्टर से, ब्रदर से मदद लेके आप काम करवा सकते हैं। मैं देखा हूँ कई मेरे फ्रेंड हैं जिनको कोई थीसिस लिखनी थी या कुछ और करना था, अपने काम को थोड़ा डेलीगेट किया, भी मेरे फ्रेंड से मदद लेंगे, इससे लेंगे, उससे लेंगे, डेलीगेट किया, क्योंकि वो अर्जेंट था बट नॉट इम्पोर्टेंट। किसी काम को आप डिले भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। भाई इस काम को हम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, तो डिसाइड व्हेन टू डू, एक डेडलाइन कि भाई आप कब तक कर लेंगे। और जो मैंने पहले भी कहा, डिलीट, 4D, डू इट नाउ, डेलीगेट इट, डिले इट एंड डिलीट और डम। जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, नॉट अर्जेंट, तो इसको आपको डिलीट करना होगा। सोशल मीडिया मैंने बताया, गॉसिप, अवॉइड टॉक्सिक पीपल, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों पे मैंने अभी आपसे बात की। आप यहाँ पे देखेंगे चार्ली चैपलिन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। एक बार ऐसा हुआ कि भी रियल स्टोरी है कि भी बनाना के छिलके गिरे रोड पे थे और ये वहां पे स्लिप कर गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सॉरी कह के और थैंक यू ठेले वाले को कहते हुए निकल गए आगे, मूव दे है। अभी छोटी सी बात, लेकिन इस पे सोचेंगे, व्हेन यू विल वर्क ऑन दिस many days, things that can be achieved, otherwise you will be stuck there self। अगर वो रुक जाते, ठेले वाले से झगड़ा होता, डिस्कशन होता, ट्रैफिक जाम होता, उनकी जो आगे फ्यूचर प्लानिंग होगी 1 घंटे बाद की, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता, वो रुक जाता। तो बेहतर मैनेजमेंट के लिए आपको इन चीजों को सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि चार्ली चैपलिन कोई अकेले एग्जाम्पल है, हम आप जहाँ पे जी रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हमें तो लगता है कि आपके जो प्रिंसिपल सर हैं वो अपने आप में एक रोल मॉडल हो सकते हैं आपके लिए। जो मेरी जानकारी है, सर जॉइंट डायरेक्टर भी हैं डिपार्टमेंट में, तो पूरे स्टेट को भी देख रहे हैं, और यू आर वेरी लकी कि आपके प्रिंसिपल भी हैं। इतने परिश्रम गार्जियन हैं आपके, और डिपार्टमेंट को देखते हुए, पूरे स्टेट को देखते हुए, और अपने इंस्टीट्यूशन को, एनजीपी पटना को रेटिंग में और किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया है, और रैंकिंग में देखेंगे आप फील करते होंगे कि यू आर इन द बेस्ट कॉलेज, नंबर 1 रैंकिंग कॉलेज में है आप, इंस्टीट्यूशन में। तो इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि कैसे किस माइक्रो लेवल की इनकी प्लानिंग है सर के, जो अभी बताया भी सर ने ब्रीफ में। और देखे होंगे कि भाई आप कोविड के पीरियड में भी ऑनलाइन क्लासेज कराया, सभी को आपने असाइनमेंट और एग्जाम सारे काम इन्होंने करवाए। तो कहीं ना कहीं सर की माइक्रो लेवल प्लानिंग रही होगी, और इतने व्यस्तम समय में पूरे डिपार्टमेंट को, स्टेट को देखते हुए, तो हमारे आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। आई रियली थैंक्स और सैल्यूट टू सर की भी, सर की इस लेवल के इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग, और उसी का नतीजा आज इन्होंने वेबिनार का शायद आयोजन किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। तो हम सभी को सीखने की ललक होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए कि हम किससे सीखें। जब ये हम कर लेंगे तो फिर वक्त को बचा लेंगे, स्वाभिमान को नहीं बचाना। किसको बचाना है? वक्त को। वी हैव टू सेव टाइम, वी हैव नॉट टू सेव आवर ईगो। और ईगो को अगर सेव कर लिया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, स्टक हो जाएंगे वहीं।
उस आत्म भाव से जाना है, उस वे से जाना है, वो श्रद्धा से जाना है कि एवरी मिनट को हम यूज कर पाए और तभी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बन पाए। वॉल्टर का नाम भी सुना होगा आप सभी ने। इनका एक था कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन फुलिश मैन एंड इंटेलिजेंट। तो फुलिश मैन वो होते हैं जो लिस्ट इंपॉर्टेंट काम को फर्स्ट करते हैं, और रिवर्स करेंगे तो इंटेलिजेंट मैन क्या करते हैं, अर्जेंट वर्क को फर्स्ट करते हैं, लिस्ट इंपॉर्टेंट को नहीं भी करते हैं, अवॉइड भी करते हैं। हमने पहले भी आपको बताया वो काम को न भी करें तो बेहतर हो सकता है। यहाँ पे कुछ टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। ये मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि गुड टाइम मैनेजर है। कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट भी आपके साथ हो सकते हैं, ये फैकल्टी के लिए शायद ज़्यादा यूजफुल होगा। जिसकी जो टीम है आपके साथ, तो उस टीम को आपने कैसे काम डेलीगेट किया है। और मैं समझता हूँ कि आपके प्रिंसिपल सर एक बहुत बखूबी इतने बेहतर वे में कर पा रहे हैं, जो मैं थोड़े दूर से जानता हूँ सर को। तो और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं कॉलेज की रेटिंग और बाकी आपको जो सुविधाएं हैं, आपकी जो लर्निंग होती है उसको इन्हांस करने के लिए नए टूल्स, नए टेक्नोलॉजी का हमेशा सहारा लेते रहते। हेल्प योर असिस्टेंट एंड सबऑर्डिनेट कंजर्व योर टाइम बाय सिंक्रोनाइजिंग योर शेड्यूल विद देम ऑन डेली बेसिस। हमें भी कई मीटिंग में आना पड़ता है, अभी भी हमारी 2 मीटिंग चल रही है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तो हमें उनमें से कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कहाँ पे शेड्यूलिंग करना है, तो ये देखना होता है। तो वही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के टिप्स होते हैं। अब कई बार होते हैं कि हम मीटिंग करें और 10 लोग लेट से आ रहे हैं, अब उनका हम वेट करें, तो ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं। It means कि we are punishing those people who are coming on time and rewarding those people who are coming on late। नतीजा क्या होता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, जो लेट टाइम से आए थे इट विल बिकम लिटिल लेट, दे विल कम लिटिल लेट एंड लेट कमर विल कम इवन मोर लेट लेटर। तो ये हैबिट है कहीं ना कहीं, और हम सबों को सीखना होगा कि टाइम के हम कितने पंक्चुअल होंगे। जैसे मैंने आपको वैल्यू ऑफ टाइम में बताया कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिनट और वीक और आवर्स का क्या वैल्यू है, मंथ का क्या वैल्यू है। इन चीज़ों को जब आप समझेंगे और जब अपने आप में आत्मसार करेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बेहतरीन रिजल्ट लेके हमारे जीवन में आता है। तो ये टिप्स हैं थोड़े टाइम मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, डेवलप द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई इम्पंक्चुअल एंड अवॉइड। जो भी इम्पंक्चुअल है आपके साथ जो आ रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों न हो, अगर टीचर कोई क्लास ले रहे हैं तो उनको, मैं तो समझता हूँ बीइंग डिसिप्लिन पर्सन के इम्पंक्चुअल जो भी आ रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं, डोंट अलाउ। अगर आप 2 बार अलाउ नहीं करेंगे तो आप 3rd टाइम वो अपने आप पंक्चुअल हो जाएंगे। यूज योर बेस्ट टाइम इफेक्टिवली, जैसे मैंने प्राइम टाइम को कहा था, एंड हैव ए टाइम स्लॉट। अपने आप को एक ऐसा टाइम स्लॉट रखें जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेट योर सबऑर्डिनेट, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी 300 लोगों की टीम है, तो हमें बताना होता है कि टीम को कि भाई आप इंटरप्ट कब नहीं करेंगे और कब आप आएंगे डिस्कशन के लिए। तो ये चीजें करनी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट के टिप्स। इंश्योर योर सबऑर्डिनेट कि भाई सबमिट मटेरियल बिफोर मीटिंग इन एडवांस so that we can review, I can review। तो ये मैनेजरियल लेवल पे जाएंगे तो इन चीज़ों को टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, इसको हमें डेवलप करने की जरूरत होती है। अपॉइंटमेंट अगर कोई दिया है या लिया है आपने तो भी फर्म, उसको आप एकदम फर्म रखें और लेट अदर्स नो दैट यू प्रेफर देम टू बी ऑन टाइम। एकदम क्लियर कट रखें। थोड़ा देर के लिए उनको बुरा लग सकता है किसी, बट लॉन्ग रन में शायद उनकी लाइफ बदल जाएगी, वो अपने आप को रीशेड्यूल कर लेंगे, वो अपने आप को टाइमिंग को, जो उनके क्लॉक है अपने बॉडी क्लॉक, उसको एडजस्ट करें। अब कई बार हम लोग मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग कैन बी मेड प्रोडक्टिव एंड कैन बी फर्म कंक्लूजन इफ एवरीवन पार्टिसिपेट एंड encourages idea and not criticize नहीं करनी होती।
अगर करने वाले आपकी मीटिंग में 10 लोग बैठ गए तो प्रोडक्टिव नहीं होगा मीटिंग, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि उन लोगों से हमें थोड़ा बाई स्टैंडर्ड जो लोग हैं खड़े हैं साथ में उनको हटाना होगा। उससे बेहतर होगा कि पीपल 1-to-1 मीटिंग कर लें जो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते। और हम अगर समझ लें कि भाई 2 ही 4 पीपल से हमें रिजल्ट आता है तो वी कैन अवॉइड द बाई स्टैंडर्ड्स। Time management is all about simply making the most of your time and energy. ये बेसिक चीज है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम अपने आप में आत्मसात कितना करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। ये टॉपिक भी कोई नया नहीं है, मैंने जो चीजें कही वो भी कोई नई चीजें नहीं कही, लेकिन है कि हम अपने आप में कितने मतलब पंक्चुअल होते हैं टाइम को लेके। और एक्स्ट्रा टाइम भी 1 और 2 आवर आपको वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा भी। कहते हैं नहीं, इंश्योरेंस का वो एक है कि आप इंश्योरेंस भी करा लो, हेल्दी हो तब भी, कि कब कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो उसके लिए अगर 24 घंटे का टाइम है तो आप बजटिंग इस तरह से करें कि 1 और 2 आवर और हाफ आवर जरूर आप अपने आप को थोड़ा फ्री में रखें, कि कोई अर्जेंसी आएगी तो उसको हम यहाँ हैंडल कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर आपका टाइम चला गया कुछ नहीं हो सकता है, मनी चला गया आप वापस ले सकते हैं, जॉब आपकी छूट गई ले सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं हो सकता है इमेज बैड हो गया है तो आप इमेज को भी वापस ले सकते हैं, क्योंकि कुछ आप नेक्स्ट डे ऐसा कर देंगे जो आपकी इमेज को और बेहतर बना सकता है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, कितने साल जेल में रहे और फिर वो यूएनएफ का प्रेसिडेंट हो गया। तो कितनी बड़ी चीज है। तो वो चीजें हम सारे गेन कर सकते हैं। वो कब गेन करेंगे? जब हम टाइम को बेहतर यूटिलाइज करेंगे, जब हम पंक्चुअल होंगे। तो ये मेरा कहना है सभी। तो ये बेहतर है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। लास्ट स्लाइड की बात करें, हमने एक और स्लाइड होगा मेरा। we all should have remember that you can not manage time. You can manage only yourself. अगर पूरे इसमें क्लास में मैंने घड़ी लगा रखा, घड़ी को देख रहे हैं पीछे से आदमी खेल रहा है, टाइम को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये संभव है कि हम स्टडी को पुश करके आज ले आएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। यू कैन ओनली मैनेज आवरसेल्फ। और अपने आप को अगर मैनेज कर लिया तो वी कैन डू मिरेकल, वी कैन अचीव एनीथिंग। मैं आपको अपनी एक और एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में देना चाहूँगा कि जब मैं वेटनरी का ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा था तो मैंने एक सेमेस्टर ब्रेक कर दिया और ब्रेक किया। कुछ अच्छे रिजल्ट के लिए मैं मेडिको में चला जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, हमारे अपने गोल्स थे, लेकिन किसी तरह वो अचीव नहीं हुआ। अब जब हम वापस कॉलेज को लौटे तो सभी का एक ही परसेप्शन था और एक ही फीलिंग था, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से, डीन से लेके सभी का कि भाई यू विल बी लेट, योर डिग्री विल बी लेट 1 और 2 ईयर। अब वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैं ये था कि इस 6 महीने के जो मेरा लॉस हुआ एक सेमेस्टर, क्या मैं इसको रिकूप कर सकता हूँ 1 साल में कमी? और मैंने मैनेज किया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मैनेज किया और मैंने डिग्री विदिन टाइम लिया, अपने सारे बैचमेट के साथ लिया। करना यही पड़ा कि जब इवन लंच ब्रेक होता था तब भी मेरा क्लास होता था, जब क्लासेस 10 बजे शुरू होती थी तब भी मेरा 9 से 10 क्लास होता था। तो वहाँ पे अपने आप को मैनेज किया, कुछ टीचर्स का सपोर्ट रहा और तब मैंने डिग्री टाइम से ले पाया। तो एक छोटी सी अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जब अपने आप को आप मैनेज कर लेंगे तो नेचुरली टाइम मैनेज हो जाएगा और यू कैन डू वेरी वेरी वेल और यू कैन डू मिरेकल। तो यही मेरा कहना था, यही मेरा सबमिशन है। आई होप कि मैं कुछ इंसाइट देने का प्रयास किया, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। एंड थैंक्स अ लॉट अगेन एंड अगेन प्रिंसिपल सर को और एनजीपी पटना को एंड डॉक्टर अनुपमा को कि जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। तो नेक्स्ट हैंड ओवर टू डॉक्टर अनुपमा। Subscribe to my channel and press the bell icon. सजेशन
Modia. Thank you so much for this valuable words. Now I request to Anuradha ma'am to vote of thanks. Okay. Thank you. थैंक यू अनुपमा जी। मैं अपने एनजीपी पटना 13 के बिहाफ पर सब थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को थैंक्स करूंगी कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ से हम अपने बच्चों को कनेक्ट करके और उनके ज़िंदगी को और सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। जिसमें पहला वेबिनार हमने आज बहुत ही सुंदर टॉपिक पे शुरू किया, टाइम मैनेजमेंट। ये हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर कोई हम गोल फिक्स करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा उसे पूरा करने के लिए। और फिर मैं अपने रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संतोष कुमार सर को थैंक करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने तरीके से बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को और हमें भी लाभान्वित किया। और हम भी बहुत चीज़ सीखे टाइम मैनेजमेंट के वेबिनार से। आशा करते हैं कि सारे बच्चे ने ये फॉलो किया और अब अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करके अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी होगी आपको। जैसा डॉक्टर अब्दुल कलाम का हम अब इन्होंने भी अपने एग्जाम्पल में दिया। उन्होंने कहा था कि हमें जागते हुए सपनों को देखना चाहिए, सोते हुए नहीं। और जागते हुए उन सपनों को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज करना, ये सभी की ज़रूरत होगी। और फिर जब हम गोल सेट करते हैं तो हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। हम ब्रेन लगाते हैं, हम हैंड से काम करते हैं, हम इंजीनियर हैं, हैंड से ही काम करते हैं, और फिर दिल लगाते हैं। ये तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है। दिल नहीं लगाइएगा तो वो काम में परफेक्शन नहीं हासिल होगी। इसलिए ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके एनजीपी पटना 13 के स्टूडेंट्स एवं फैकल्टी को मैं ये भी अपने तरफ से और इन लोगों की तरफ से बताना चाहूँगी कि ये सभी करके अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी हो और हमारा एनजीपी पटना 13 का फ्लैग हमेशा हाई रहे। मैं अपने प्रिंसिपल सर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को बोलना चाहूँगी कि आप एक बार बच्चों का प्रोत्साहन करें। और बच्चे को वार्निंग भी देना चाहूँगी कि जैसा सर ने कहा कि टॉक्सिक पीपल को अपने जीवन से हटा दें, तो कुछ बच्चे हम देखते हैं चैट्स में अपना गलत सलत कुछ लिखना शुरू करते हैं। हो सकता है उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जो हम सॉल्व कर सके आगे आकर के। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि अपना पर्सनल प्रॉब्लम अपने मेंटर टीचर से हमसे शेयर करें और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि इस प्लेटफॉर्म पे अपने को टॉक्सिक पीपल साबित करें, है ना। इसलिए बच्चे ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। हाँ, आगे भी हम बहुत सारा वेबिनार करेंगे, उनका लाभ लें। ना कहना है, मेरी तरफ से ये गुजारिश है। और अब मैं सर को ये कहना चाहूँगी कि सर भी कुछ आप लोग को प्रोत्साहन करें। Thank you, our learned speaker, Shri Santosh Kumar sir, or thank you very much, Dr. Anupma and Anuradha ji. Am I audible? Yes, sir. Am I audible or not? Yes, sir. Okay. So, thanks once again to our students for their patience learning. कुछ हमारे स्टूडेंट्स नए नए एनोटेशन सीख रहे थे, तो वो गलती से मोबाइल पे एनोटेशन वाला बटन आ जाता है, तो उनसे वो कुछ स्क्रीन गंदा हो रहा था, बट वो बाद में फिर सीख गए और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी भाषा में, सरल भाषा में हमारे लर्नेड स्पीकर द्वारा ये जो व्याख्यान दिया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने व्याख्यान देने वाले विद्वान डॉक्टर संतोष कुमार जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे टेक्निकल टीम है वो अलर्ट होके उन लोगों ने इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया और हमारे सभी 300 से अधिक जो बच्चे जुड़े रहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे,
और लाइव होके उन्होंने वेबिनार के माध्यम से जो टाइम मैनेजमेंट सीखा, हमें उम्मीद है कि बच्चे उसको अपने जहन में उतारेंगे और टाइम मैनेजमेंट की कला वो ऑफ कोर्स पहले से भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तभी वे इतने बड़े कंपटीशन में compete करके अव्वल नंबर लाके, अव्वल पोजीशन लाके और मेधा क्रम में ऊपर होके एनजीपी में उनका नामांकन हुआ है। आगे उनसे उम्मीद है कि टाइम मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से मैनेज करके और प्रायोरिटाइज और प्राथमिकता को कैटेगरी बांट के हर कार्य को करे ताकि वे अपने जीवन में सफल हो। हमारी उपलब्धि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ऊंचे से ऊंचे सक्सेस रेट पर देखना है और उनके इस सक्सेस प्राप्ति में ही हम सभी शिक्षक को, संस्थान को एक गौरव महसूस होता है और हमें सेटिस्फैक्शन। Thank you, sir. Thank you to all participants. I think we will close this webinar. Okay. Thank you to all participants.